Good morning, student. Today, student, we are starting the numerical portion and a revision from the ray optics. And today the topic is, student, the numericals will be based on the prism. Prism already you know it, student. From the front side, it looks like a triangle, and this is the surface which it has. You have already seen it, student. It has refracting surfaces and tilted by certain angles, and the front side, the principal section, is looking like a triangle, student. Now, student, about the prism, student, remember it. This is the prism, student, and the principal section of it. This is the one normal, student. Normal. This is the ray of light, angle of incidence. This is the refracted ray. This is another normal, and this is, student, emergent ray. This is known as angle of prism, student. Now this is refraction at the first surface. Say angle is R1. Refraction at the second surface, angle is R2, student. Suppose, student, in this triangle, upper triangle, this angle is alpha and this angle is beta, student. So this alpha, student, if you see it from the figure, it can be written as 90 minus R1. Similarly, from here, student, beta can be written as 90 minus R2. Now if you see this upper triangle, student, alpha plus beta plus angle of prism is 180 degree. You substitute the value of alpha and beta, student, you will get one very important relation, student. R1 and R2 is equal to A. A very important deduction, student. It will be useful in many numericals. So I am writing this formula here, student. R1 plus R2 is equal to A, student. Okay. Now second is, student, you have to remember the Snell's law, student. The product of mu sine theta is constant. This you have to remember for any pair of media. This product is a constant, student. Mu sine theta will be a constant quantity, student. Now, student, before one more, the next principle is reversibility of light, student. Reversibility of light. Now, suppose, student, this is the prism. This is angle of incidence, student. Say it is 60 degree. And this is angle of emergence. It is 40 degree. Okay, student. Means I is equal to 60. E is equal to 40 degree. Now suppose I make I 40. Then you should remember, if I make I 40, the angle E will become 60 degree. This you have to do. This is the principle of reversibility of light. If suppose this light is retraced back, say I am placing a mirror here, it will go back in the same path. So in that case, angle of incidence will be 40 degree, E will be 60. So this is from the principle of reversibility of light, student. If I is 60 and E is 40, then if E becomes 60, then I will become 40, student. This is from the principle of reversibility of light. This you have to remember, student. Now, student, I am starting with the numerical. The first numerical, student. Suppose this is the prism. This is angle of prism, student, 60 degree. And say refractive index is √2. This is the angle of incidence is 45 degrees, student. This is normal, student. You have to find out angle of emergence, student. This is the question. Find angle of emergence. So how I will start, student? See, this is I. This angle is R1. This is R2. So at this point I will apply Snell's law. So what is Snell's law, student? Mu1 sine theta 1 is equal to
mu 2 sine theta 2. So mu 1 it is air, it is 1, sine theta 1 it is sine 45 degree. Mu 2 is given student root 2 sine R1. So sine R1 will be is equal to student sine 45 upon root 2. So sine 45 is 1 by root 2, so it will become student half. So R1 comes out to be 30 degrees student. R1 is 30 degrees. So this angle is 30 student. This is given. Now just this formula I told you, R1 plus R2 is equal to A. So R1 is 30, R2 is equal to 60 degree. So from here the R2 comes out to be student 30 degree. Now again I will apply Snell's law here student. Here. This is C. Mu of this is root 2 sine theta, sine R2, sine 30 is equal to mu of this is air 1 sine. So this is root 2 and sine 30 is half is equal to sine E. So sine E is equal to student 1 by root 2. So here I get E is equal to 45 degree. As you know, sine 45 is 1 by root 2 student. So this is how student you have to solve this kind of numerical. Snell's law you have to apply. Mu1 product of mu sine I is equal to mu sine R. Again here mu sine R, mu sine. Snell's law you have to remember student. So this kind of problem can be solved. So this is one kind of numerical. Now student we are coming to the next category of the numerical. There is a one word student glazing the prism. I will show by the help of an example student. Now suppose student this is the prism and this side is silvered. It is silvered student. Now student this angle of prism A is given to be 30 degree. Now student this is the normal. This is the ray which is entering at a certain angle I. Now it enters in such a way student that it retraces the path. Retraces the path. It comes back in the same path. So you have to find out this angle I. And student the mu is you have to find out student suppose first I am changing question. You have to find out mu and say I is given. I is given student, you have to find out mu. But the condition is the ray is retracing the path. So retracing the path means this ray will fall normally student. This is 90 degree. Now in this triangle you see this is 90, this is 30. So this angle student is 60 degree. And if this is 60 student, this is R1. You can clearly see it is 30 degree. Because this whole is 90. So now see here we apply Snell's law. Mu1 is 1 sine theta, sine 45 is equal to mu sine R1, sine 30. Now sine 45 is root 2 student, mu sine 30 is 1 by half. So student mu becomes 2 by root 2. So mu is root 2. So this is what the numerical is solved. You have to find out the value of mu. And suppose student mu is given, you can find out the value of I also. You can find out. So like that the different numericals can be made. So this is one category of numerical in which the light is retracing the path. So remember student, you have to trace out this angle. This is 90, this is given. This angle you can find out by the triangle and this angle you will come to know. And then you apply Snell's law here. Now student, the another category of numerical. This is the prism student.
this is angle A and this is 75 degree. This is normal. This is the angle, ray entering a certain angle, refracted ray. Here the ray is coming out, that is glancing the prism. See, it is coming out like this, student. This is angle E, student, and it is 90 degree. You have to find out this angle of incidence, student. And student, mu is given in this case. Mu is root 2. Okay, student, got the question? The ray is glancing the prism and coming like this. This is I, student. This angle is R1. This angle is R2, student. So first I will apply Snell's law at this surface. Here, mu 1 sin theta is equal to mu 2 sin theta. So mu means mu of this surface. It is root 2 sin R2 is equal to, this is air, mu is 1, mu 2 sin theta 2 sin E means sin 90. So root 2 sin R2 is equal to sin 90. So students, sin R2 comes out to be 1 upon root 2, and this means R2 is 45 degree. This angle I got, student. Now from this formula, R1 plus R2 is equal to A, student. So I will get the value of R1. A is 75 minus R2 45. So R1 is 30 degree, student. Now I got R1 30. Now again Snell's law here, student. Mu 1, here it is 1 sin I is equal to mu 2 root 2 sin R1 sin 30, student. Now student, the problem is solved. You can easily find out angle I. This is one kind of numerical, student. This is where the ray is glancing and I am solving it, student. And this is root 2 sin half, and this will come out to be 1 by root 2. So student, I comes out to be 45 degree. So this I is 45, student. Means when the ray entering at 45 degree, it is glancing the prism and coming out. Okay, student. Now student, I will analyze it in a different way. Suppose student, this I, in this case, this I is 30 degree. Then what will be the result? That I want to analyze. So how to analyze this is, see student. You remember this relation. Mu 1 sin theta 1 is equal to mu 2 sin theta 2. Remember student, if I change theta 1, theta 2 will change. If I increase theta 1, theta 2 will increase. If I reduce theta 1, theta 2 will reduce. Now here in this case, theta 1 is 45. So I am reducing it. So if I am reducing this angle will decrease. I am writing formula for this first, student, so that mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R1. So I is 30 means I am student decreasing. I am decreasing I. So if I decrease I, R2 will decrease, R1 will decrease, R1 कम हो जाएगा. अब रिलेशन देखो, इसको कम करने से ये कम हो रहा है. तो जब स्टूडेंट R1 कम होगा, अगर R1 कम हो रहा है, तो अब जो रिलेशन है हमारा ये वाला, इफ दिस इज प्लस इज कांस्टेंट ए, अगर R1 कम हो रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब R2 का वैल्यू बढ़ गया है, R2 इज इंक्रीजिंग. R2 ये वाला एंगल है स्टूडेंट, देखो यहाँ वाला, जिसके कारण पहले R2 का ये एंगल 90 हो रहा था, अब ये R2 बढ़ रहा है. एंड स्टूडेंट, इफ यू रिमेंबर व्हेन द सिचुएशन लाइक दिस हैपेंस, कि जो ये है डेंसर, ये है रेयरर मीडियम, डेंसर से रे में जा रही है स्टूडेंट, और इस R2 का एंगल 90 था पहले वाले R2 का. ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये क्रिटिकल एंगल था स्टूडेंट, पहला वाला R2 क्रिटिकल एंगल था. और अभी जब मैं I को 30 कर रहा हूं तो R2 बढ़ रहा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बढ़ रहा है वो. इट इज द क्रिटिकल एंगल इज इंक्रीजिंग जब I 30 है. दिस मीन्स स्टूडेंट, अब जो ये रे होगा, इट विल बी
totally internally reflected. Total internal reflection will take place student. तो ध्यान देना स्टूडेंट, I45 पे ये रे ऐसी आ रही थी, तो मैंने क्या किया, I30 पे इसको एनालाइज किया। तो I30 पे करने से क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाला फॉर्मूला का मैंने हेल्प लिया है, आई हैव टेकन फॉर्मूला दिस हेल्प। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैं इसको 30 कर रहा हूं, मतलब मैं कम कर रहा हूं, तो R1 कम हो जाएगा पहले से। अगर पहले से R1 कम हो रहा है तो R2 बढ़ेगा स्टूडेंट, इस रिलेशन के अनुसार R2 बढ़ गया है, मतलब पहले जो R2 था वो तो क्रिटिकल एंगल था, अब R2 बढ़ रहा है, मीन्स क्या, तो 30 वाली डिग्री वाली रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी स्टूडेंट। ये इसका मीनिंग है, इसका ऐसा डायग्राम बनेगा, ये देखो, ये अगर 30 डिग्री है स्टूडेंट, दिस रे विल गो लाइक दिस, ये स्टूडेंट ऐसे वापस आएगी, ये इसका मीनिंग है स्टूडेंट। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, अगर इस आई को अपन 50 करते हैं, अभी 45 से कम किया था, अब मैं इसको 50 कर रहा हूं स्टूडेंट। अब क्या हुआ देखो, फिर से ये वाला फॉर्मूला, मैंने आई को बढ़ा दिया तो R1 बढ़ेगा, आई एम इंक्रीजिंग आई को मैंने इंक्रीज किया है, तो ये वाला इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, अगर ये इंक्रीज हो गया, इस रिलेशन से देखो, ये कांस्टेंट है, मतलब R2 डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट। और पहला R2 क्रिटिकल एंगल था, अब क्रिटिकल एंगल से जब कम होता तब क्या होता है स्टूडेंट, लाइट बाहर निकल जाती है। ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टूडेंट, अगर क्रिटिकल एंगल से कम हुआ एंगल इंसिडेंट, तो वो लाइट विल इमर्ज आउट। तो जो I50 वाली, इट विल, द रे विल गो आउट, मतलब अगर ये आप 50 कर दो स्टूडेंट, तो ये रे बाहर निकल जाएगी। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपको इजी रहेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या किया था अपन स्टूडेंट, जैसे ये है डेंसर मीडियम, ये स्टूडेंट डेंसर था, ये रेयर मीडियम था, ये नॉर्मल है। ये रे, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है स्टूडेंट, तो रे ऐसे चले जाती थी, ये वाला एंगल 90 होता था। ये स्टूडेंट था डेंसर मीडियम, और ये है रेयर मीडियम। अब स्टूडेंट मैं यहां इस लेंस को अप्लाई करूंगा तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, देखिए लाइट यहां से यहां जा रही है, μ1 sin θ1, तो μ1 मतलब म्यू डेंसर मीडियम, साइन साइन मतलब थीटा सी, इज इक्वल टू μ2 रेयर मीडियम साइन 90। अब स्टूडेंट देखिए, यहां से मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा μr अपॉन μd। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, साइन इनवर्स μr अपॉन μd। अब अगर एंगल इसको हम एक्सीड करते हैं स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल को, तो रे वापस आ जाती है, और अगर इससे कम करते हैं इंसिडेंट को, तो रे बाहर निकल जाती है। ये फॉर्मूला स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल का, साइन इनवर्स म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर, ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक दूसरे न्यूमेरिकल, एक अदर पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। यू हैव टू पे अटेंशन स्टूडेंट। इसके देखिए स्टूडेंट, ये प्रिज्म है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और स्टूडेंट इसका म्यू अपन ले लेते हैं √2। दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज आई स्टूडेंट।
आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट, ये कैसा हो, सो दैट ऑल आई एट एनी एंगल emerges out, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई सा भी हो, सारे रे बाहर निकल जाएं, मतलब किसी का भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ना हो। तो हमें ए एंगल कितना होना चाहिए। अब देखिए रेस सारी, मतलब बहुत सारी रेस हैं, यहां से स्टार्ट, ये नॉर्मल है, एक रे हो सकता है ऐसा भी जाए, यहां से स्टार्ट है स्टूडेंट, ऐसे करते करते बहुत सारे रे होंगे, एक रे ऐसे जाए और लास्ट वाला रे ये वाला रहेगा, इतने सारे रेस पूरे यहां से अंदर जाएंगे स्टूडेंट। हम चाहते हैं सारे रेस दे गो आउट, तो ए कितना होना चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात देखो यहाँ पे मैं फिर से ये फिगर यहां बना रहा हूं स्टूडेंट। दिस इज ए, मैं स्टूडेंट पहला वाला रे मान रहा हूं ये वाला एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है सपोज, दिस इज आई। तो ये रे कैसे जाएगी, देखिए तो नॉर्मल है, आगे निकल जाएगी ऐसे ही, ये हो गया स्टूडेंट। यहां पे फिर से एक नॉर्मल बनाते हैं स्टूडेंट, ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है इस वाले का, ठीक है स्टूडेंट। अब एक और मैं ये वाला एक्सट्रीम ले रहा हूं स्टूडेंट, ये दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज इंसिडेंट रे स्टूडेंट, मैं इसको दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। ये वाला रे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए ये म्यू डेंसर मीडियम रेयर, इट विल गो टू, ये नॉर्मल है टुवर्ड द नॉर्मल, ये रे यहां कहीं बेंड हो गया ऐसे, ये इसका स्टूडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और बाकी और रे रहेंगे इसके बीच वाले, वो मैं नहीं बना रहा हूं स्टूडेंट अभी, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि ऑल द रे बाहर आ जाए, सारे रेस बाहर आ जाए स्टूडेंट, ये वही पॉइंट। अब स्टूडेंट आप एक चीज ध्यान से देखना, ये वाला जो रे है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है, तो इसका जो R1 होगा स्टूडेंट वो भी 0 होगा, इस रे का R1 0 होगा, और हमारे पास जो रिलेशन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो ये 0 हो गया स्टूडेंट और R2 इज इक्वल टू A, ठीक है स्टूडेंट। मतलब इसका जो R2 होगा ये मैं R1 R2 इस प्रिज्म के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, वो A के बराबर होगा। अब आप स्टूडेंट ये वाला रे देखिए, ये इसका I 90 है, इसका I 90 है, दिस मीन्स स्टूडेंट इसका जो R1 होगा वो 0 से तो ज्यादा ही होगा, 0 से वो ज्यादा ही होगा स्टूडेंट, R1 जो होगा, जो R1 0 से ज्यादा होगा स्टूडेंट, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये प्रोडक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। दिस मीन्स स्टूडेंट, दिस मीन्स ये जो R2 अब आएगा, इसका जो R2 आएगा स्टूडेंट वो इस एंगल से कम आएगा, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। आप यहां से कंपेयर करो दोनों को, ये R2 ये वाले रेखा है वो A के बराबर आ रहा है, और इसका R2 क्या आ रहा है, A माइनस R1, R1 की कुछ वैल्यू होगी, मतलब इन सारे रेस में स्टूडेंट, फॉर ऑल दिस रेस ये वाले एंगल का R2 सबसे ज्यादा होगा, और बाकी जितने बीच वाले रेस होंगे उनका ये वाला एंगल इससे कम होगा, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू बाय दिस मैथमेटिक्स। तो अगर मैं इस वाले रे को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा दे, इसको अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होने देता हूं, मतलब लेस देन क्रिटिकल एंगल रखता हूं, तो बाकी जितने और रेस रहेंगे उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दिस मैथमेटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगर मैं इस वाले रेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करवाने देता हूं, मतलब इस एंगल को ऐसा करता हूं कि क्रिटिकल एंगल से कम रहे, तब कोई भी रे जो बीच वाली आएगी वो नहीं होगी क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा एंगल सब में। दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट।
सो आई एम टेकिंग दिस रेस स्टूडेंट, इसका जो R2 है वो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब स्टूडेंट इस रे का R1 मैंने अभी आपको बताया था, R1 क्या है 0, तो जो फॉर्मूला है स्टूडेंट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, इससे आ रहा R2 इज इक्वल टू ए, R2 ए के बराबर आ रहा है। मतलब स्टूडेंट जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो होना चाहिए लेस देन क्रिटिकल एंगल जो इस मीडियम का यहां का बन रहा है। तब जितनी रेस आएंगी आइस की, दे विल ऑल इमर्ज आउट। ये इसका थ्योरी है स्टूडेंट। और हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अभी मैंने आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बताया था, इसका क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। तो साइन इनवर्स म्यू रेयरर एयर है 1 और डेंसर का √2 है, तो ये आ गया स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री। मतलब अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 45 से कम है इस वाले केस में, तो जितनी भी रेस आएंगी इनका किसी का भी दे विल गो आउट, किसी का भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। दिस इज द थ्योरी स्टूडेंट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज एक दो बार करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो बायो स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स है इसमें। अब मैं स्टूडेंट इसके एक दूसरा ऑपोजिट एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देता हूं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर ऑल एनी एंगल, सबके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, TIR टेक्स प्लेस। अब मैं चाहता हूं जितने रेस जाए सबका TIR हो जाए, वो क्या कंडीशन है। आया समझ में स्टूडेंट क्वेश्चन? देखिए ये प्रिज्म है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू मान लेते हैं √2 दे दिया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है स्टूडेंट। तो मैं चाह रहा हूं सारे रेसों का क्या हो जाए, तो TIR हो जाए, जितने भी रेस यहां से आए, कोई भी एंगल का जाए, सबका TIR होना चाहिए स्टूडेंट। अब फिर से इसको एनालाइज करिए स्टूडेंट। एक ये वाला रे, इसका एंगल मैंने अभी बताया था, इसका R2 सबसे ज्यादा बन रहा है, और ये वाला रे स्टूडेंट, इसका ये सबसे कम बन रहा है, और भी बीच में रेस होंगी। सबसे ज्यादा इस रे का एंगल बन रहा है, सबसे कम इसका बन रहा है। अगर मैं इसको करवा दूं TIR, ये सबसे कम है इस रे का, ये सबसे कम है। अगर मैं इसको इस एंगल का यहां पे TIR करवा दूं, तो जितने रे हैं सबका TIR होना ही है, क्योंकि ये एंगल सबसे कम है। इसको मैं, इस एंगल को मैं कर दूंगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब मैं अब इस रेस का स्टडी करूंगा स्टूडेंट, ये वाले रे का ध्यान रखना, ये ब्लू वाला बनाया हूं, इसका R2, इसका जो R2 होगा उसको मुझे क्रिटिकल एंगल से बड़ा करना है। अब स्टूडेंट एक चीज और देखना, मैं इसको अलग से बना रहा हूं फिगर। तो आई एम टेकिंग दिस रे, और ये यहां से कहीं से ऐसा जा रहा है, दिस एंगल इज द स्मॉलेस्ट। बाकी जो रे ऑफ इंसिडेंट रहेंगे, इसका ये वाला एंगल सबसे कम होगा, इसका मैं नाम R2 दे रहा हूं स्टूडेंट। इसको यदि मैं ग्रेटर देन θc कर दूं, तो बाकी जितने सबका तो TIR होना है। अब स्टूडेंट यहां का देखो, यहां का जो R1 है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये 90 है स्टूडेंट, इस रे के लिए I 90 है। तो जब I 90 होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल स्टूडेंट एक्चुअली, ये वाला जो रिलेशन है स्टूडेंट, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, A माइनस R1। ये R2 होना चाहिए ग्रेटर देन θc, मतलब स्टूडेंट A माइनस R1 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, R1 क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज R1? R1 इज क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये 90 है, R1 क्रिटिकल एंगल है स्टूडेंट। तो यहां आप क्रिटिकल एंगल रखो, देखो A माइनस क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इससे स्टूडेंट कंडीशन आ गई
A must be greater than twice theta c. ये वो वाली कंडीशन है स्टूडेंट जिससे क्या होगा, फॉर ऑल आई TIR will take place. For all I TIR will take place. तो अब जो प्रेजेंट न्यूमेरिकल है जिसमें अपन ने म्यू को √2 लिया है, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, मतलब अगर ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म 90 से बड़ा हो तो इस प्रिज्म के लिए होगा ये वैल्यू 90 से बड़ा हो, इस प्रिज्म में जितने रेस एंटर होंगे सारों का TIR होगा। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट में ये कंडीशन आप नोट कर लो, पूरी होल थ्योरी का मैं आपको लिख दे रहा हूं। अगर A इज लेस देन थीटा सी, ऑल रेस इमर्ज आउट। A greater than twice theta c, all rays undergoes TIR। और इनके बीच में जो वैल्यू होगी स्टूडेंट, अगर A की वैल्यू के बीच में रहेगी तो सम रेस विल अंडरगो TIR एंड सम रेस विल अंडरगो इमर्ज आउट। जैसे अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन आपको कराया था, 75 डिग्री में A में मैंने लिया था स्टूडेंट, तो अलग अलग आई मैंने देखा, I45 पे ग्लेजिंग हो रही थी, I30 पे आपने देखा स्टूडेंट, I30 पे क्या हो रहा था आपने देखा, और I50 पे क्या हुआ था वो भी आपने स्टूडेंट देखा, I50 में क्या हो रहा था। सो दिस इज द कंडीशन स्टूडेंट, A greater than 2 theta c, all rays undergo TIR। सो स्टूडेंट टुडे दिस मच। इसी न्यूमेरिक इसी बेस पे स्टूडेंट एक सरप्राइज टेस्ट मैं आपको अभी भेजूंगा स्टूडेंट, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा आपको बन रहा है कि नहीं। थैंक यू स्टूडेंट।